کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں اسموگ سے آلودہ ہر دن شہریوں کے لیے بیماریوں کا پیغام لانے لگا۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 395 کی حد کو چھو گیا۔ چلیوٹ کی فضا بھی زہر آلود، توبہ ٹیک سنگھ جھنگ کے شہری بھی فضائی آلودگی سے نہ بچ سکے۔ ڈویژن میں ہر گزرتا دن سموگ میں بڑا اضافہ لانے لگا۔ صنعتی شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 395 پوائنٹس کو چھو گیا۔ چلیوٹ میں بھی فضائی آلودگی کا سامنا، آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 190 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ توبہ میں بڑھتا ہوا ایئر کوالٹی انڈیکس بیماریاں بڑھانے لگا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 190 پوائنٹ ریکارڈ، جبکہ شام کے اوقات میں کچھ کمی دیکھی گئی۔ جھنگ میں ایئر کوالٹی انڈیکس زیادہ سے زیادہ 184 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق صنعتوں اور ٹرانسپورٹ کا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ جھنگ میں ہی بھٹوں کی چمنیاں اور انتظامی نااہلیاں فضا کو تباہ کرنے لگی۔ گوجرا روڈ، فیصل آباد روڈ اور جھنگ سٹی میں بھٹوں سے نکلتا دھواں بند نہ کیا جا سکا۔ ریلوے ٹریک اور سرگودا روڈ پر کچرے کو آگ لگا دی گئی۔ محکمہ ماحولیات خاموش تماشائی بن گیا۔ 18 ہزاری میں بھی سموگ بادل کی طرح چھا گئی۔ انسداد سموگ اقدامات اور دعوے کاغذات تک محدود رہ گئے۔ کسان فصلوں کی باقیات جلا کر ماحول مزید خراب کرنے میں مصروف دکھائی دینے لگے۔ شورکوٹ میں فضائی آلودگی اثر دکھانے لگی، شہری گلے کے امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ کمالیہ میں شہریوں کے بچاؤ کے لیے تحصیل ہسپتال میں اسموک کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ شورکوٹ میں فضائی آلودگی اثر دکھانے لگی، شہری گلے کے امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ گلے کے انفیکشن کا شکار افراد کی بڑی تعداد کا ہسپتال کا رخ۔ ڈاکٹرز کے مطابق گلے کے انفیکشن کا شکار افراد بڑی تعداد میں ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس ٹی ایچ کو شورکوٹ میں 100+ پیشنٹ آ رہے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، جو کہ گلے کے مسائل کا شکار ہیں۔ ان میں بڑی وجہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی بھی ہے۔ تو ہماری جنرل پبلک کو یہ درخواست ہے کہ وہ اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کریں۔ اسموگ کے باعث کمالیہ کا بگڑتا ہوا ماحول، تحصیل ہسپتال میں اسموگ کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اسموگ انتہائی مضر صحت، شہری زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، دوران سفر ماسک یا رومال سے ناک اور منہ ڈھانپیں، چشمہ لگائیں، آنکھیں دھوئیں، سر ڈھانپ کر رکھیں اور گھروں میں صفائی کے لیے جھاڑو کی بجائے گیلا کپڑا استعمال کریں۔ نے شہریوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کرتی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ شہری روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، گھروں میں صفائی کے لیے جھاڑو کی بجائے گیلا کپڑا استعمال کریں، باہر نکلتے وقت آنکھوں پر چشمہ لگائیں، دوران سفر اور بعد میں آنکھوں کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں، ہلکا اور ڈھیلا ڈالا لباس پہنیں، سر پر ٹوپی یا رومال ضرور رکھیں، ناک اور منہ کو ماسک یا رومال کے ذریعے ڈھانپ کر رکھیں۔ اسموگ کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریاں، گلے کی انفیکشن اور پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک اور گلاسز کا استعمال کریں اور واپسی پر صاف پانی سے اپنا منہ اچھی طرح واش کریں اور زیادہ سے زیادہ صاف پانی پئیں اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اسموگ کی روک تھام میں جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور جو اپنا محلے میں کوڑا کرکٹ ہے اس کو آگ مت لگائیں، فصل کی باقیات کو آگ مت لگائیں۔ گاڑیوں کا بر وقت معائنہ کرائیں تاکہ دھوئیں سے ماحول میں آلودگی کم سے کم ہو۔ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، ٹھنڈے مشروبات پینے سے احتیاط برتیں۔ گلیوں اور بازاروں میں گرد آلود جگہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ متعفن مقامات پر بھی توجہ دیں تاکہ دھول اور مٹی وغیرہ نہ اڑے۔ ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے فیسکو حکام، ڈیفالٹرز کو کرنٹ لگانے لگے۔ 300 سے زائد صنعتی صارفین کو بل جمع کرانے کے لیے 2 روز کی مہلت۔ 14 سرکاری ڈسپنسریز کو بھی بجلی کاٹنے کا آخری نوٹس جاری کر دیا۔ کے بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف فیسکو کا گھیرا تنگ۔ نیپرا کی ہدایات پر فیسکو صارفین پر سختیاں بڑھ گئیں، ایک ساتھ کی سہولت مکمل بند کر دی۔ شہر بھر میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے والے 300 سے زائد صنعتی صارفین کو ادائیگی کے لیے سوموار تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ رواں ہفتے کے دوران شہر بھر میں ہزاروں گھریلو صارفین کے کنیکشن بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریز بھی فیسکو کی ڈیفالٹر نکلی۔ نہ دہندہ 14 ڈسپنسریز کو آخری نوٹس ارسال، بل جمع کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ بجلی منقطع ہونے کی صورت میں سرکاری ڈسپنسریز میں ویکسین سمیت کروڑوں مالیت کی ادویات خراب ہو جائیں گی۔ گورنمنٹ ڈسپنسریز نے 4 ماہ سے فیسکو کو 7 لاکھ روپے کا بل ادا نہیں کیے۔ فیسکو کی جانب سے ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے صارفین پر سختیاں مزید بڑھا دی گئی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41، فیصل آباد۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی اضافہ، موقع پر ٹرانسپورٹرز نے پھر گاڑی پرانی ڈگر پر ڈال دی، خود ساختہ 20 روپے تک کرائے بڑھا دیے۔
मुसाफिरों का एहतजाज, नया किरायानामा मुस्तरद कर दिया। डीजल की कीमत में मामूली इजाफे पर नॉन एसी बसों ने खुद साख्ता किराए बढ़ा दिए। लाहौर का किराया 445 से बढ़कर 450 रुपए हो गया। शेखुपुरा 285 से 290, जनावाला 75 से 80 रुपए, अमीनपुर बंगला 95 से 100, भवाना 155 से 160, झुमरा 80 से 85, मामू कांजन 250 से 255, सरगोदा 405 से 410 और चिन्योट का किराया 85 से 90 कर दिया गया। बहावलपुर के लिए किराया 690 से 700, भक्कर 880 से 890, लैया 755 से 765, झंग 250 से 255, नया लाहौर 110 से 115, शोरकोट 400 से 405, पीर महल 390 से 395, कोट अब्दुल हकीम 485 से 490, समुंदरी 110 से 115, रजाना 300 से 305, कमालिया 350 से 355, गोजरा 175 से 180, टोबा टैक्सी 245 से 250, शाहकोट 110 से 115 और खुर्रियावाला का किराया 55 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया। सियालकोट 765 से 775, गुजरावाला 530 से 540, उकारा 300 से 305, सादकाबाद 1420 से 1440, रावलपिंडी 940 से 955, मुल्तान 690 से 700, रहीम यार खान 1320 से 1340, मियां चन्नू 485 से 490, मियां वाली 830 से 840, खानेवाल 600 से 610, गुजरात 560 से 570, बहावलपुर 765 से 775, तांदले वाला का किराया 110 से 115 रुपए हो गया। मुसाफिरों ने नया किरायानामा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मामूली इजाफे पर किराया नहीं बढ़ाना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि किराए में कमी की जाए और पेट्रोल जो महंगा किया गया है इसे भी कम किया जाए। जो हमने आना जाना होता है, रोजाना ट्रैवलिंग करनी होती है, इसमें हमें पेश जो दिक्कत है वो होती है, ठीक है। तो इनसे ये अपील है कि हमारे किरायों में जो है कमी की जाए, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो। शहरियों ने पुराना किरायानामा बहाल करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। कपास की कम पैदावार के असरात मुरतब होना शुरू। कपास दरामद करने के बावजूद शान की किल्लत, टेक्सटाइल मालिकान और एक्सपोर्टर्स को बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने में बड़ी लागत और दुश्वारी का सामना। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सनती शहर में कपास की कम पैदावार ने यौन मंडी को मंदे में डाल दिया। ताजिर आलमी ऑर्डर्स पूरे करने से कासिर हो गए। एशिया की बड़ी यौन मार्केट फैसलाबाद के ताजिर परेशान। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं कि बांग्लादेश के हालात खराब होने से हमारे पास ऑर्डर्स आए। खाम माल शॉर्टेज के असरात मंडी पर मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत को खाम माल कमी पूरा करने के लिए इकदामात करना होंगे। इस दफा जो बांग्लादेश की वजह से एक्सपोर्ट के ऑर्डर हम जो देख रहे हैं उनमें काफी ज्यादा इंक्रीज है। खासतौर पे निटिंग वाली साइड पे जो है ना वो काफी ज्यादा ऑर्डर्स हैं हमारे पास, लेकिन कॉटन की शॉर्टेज होने की वजह से जाहिर बात है उसके रॉ मटेरियल में इंक्रीज आएगा, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपोर्टेबल जो आइटम्स हैं, जो एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल है, उसको फोकस करके चलें। हुकूमत बरामदात के लिए दरामद मुमकिन बनाए और फौरी रिलीफ मुहैया करे ताकि बरामदी ऑर्डर्स मुतासिर न हो। कैमरा टीम के हमरा बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। मेट्रो बस, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ITCT, रोड सेक्टर समेत तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में फैसलाबाद की तरक्की के हवाले से अहम और बड़ी बैठक। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, CPO फैसलाबाद, जिली महकमों के अफसरान DCC मीटिंग में शरीक हुए। सेनेटर तलाल चौधरी, राना सनाउल्ला, राना शहरियार, शहबाज बाबर गुज्जर, शेख एजाज, फकीर हुसैन डोगर, ताहिर जमील, हाजी अकरम अंसारी, नवाब शेर वसीर, अली गौहर बलोच भी शरीक। शुएब इदरीस, अब्दुल रजाक, अजमल आसिफ, राना अली, मेहर हामिद रशीद व दीगर भी शरीक हुए। फैसलाबाद मास्टर प्लान, तजावुजात, रोड हादिसात समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को डिस्कस किया गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि फैसलाबाद में IT यूनिवर्सिटी, मेट्रो बस, अर्बन बस ट्रांसपोर्ट, रोड सेक्टर स्कीमों पर मीटिंग हुई। तमाम तर स्कीमों पर अमली जामा पहनाया जाएगा। आज एक नई DCC CM साहिबा के हुक्म से, जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स और हमारे सदर और सेक्रेटरी जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट के वो शामिल हुए। जो CM के इनिशिएटिव हैं, जो फैसलाबाद के लिए बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो मेट्रो हो, IT यूनिवर्सिटी हो,
इसके अलावा बाकी कई जो बहुत सारी सड़कें हर हलके को दी गई हैं, बाकी वासा PHA। लीगी रहनुमा शहबाज बाबर गुज्जर का कहना है कि वजीर आला की हिदायत पर तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू किया जा रहा है। काफ़ी जामे डिस्कशन हुई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, डेवलपमेंट के हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट हो गई, मेट्रो हो गई, और बाकी जो हमारे फैसलाबाद के हिसाब से IT यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, उन सब पर काफ़ी जामा डिस्कशन हुई, और इंशाअल्लाह अनकरीब तमाम के तमाम प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और लोगों को इसके सब का फल मिलेगा। इस मौका पर मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि किसी पर भी जुल्म हो हम यकीन नहीं रखते, लेकिन बानी PTI के साथ कोई डील नहीं हुई। कैमरामैन जुबैर के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। डिवीजन भर में तजावजात माफिया मुतहरिक, फैसलाबाद के 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। चिन्योट में इंतजामिया ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के शहरी जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी से मायूस हो गए। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क डगरावा रोड पर हादिसात से तंग आए इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क की मुरम्मत का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन, CPO, DPO सबको दरखास्तें दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझपर कारपोरेशन के अलावा CPO, DPO और कमिश्नर तक पता है इस बात का कि पिछले 18-20 साल से यहाँ पे पानी खड़ा है। सड़क इतनी टूटी हुई थी कि लोग रात को यहाँ पे गिर जाती थी, फैमिलियां गिर जाती थी, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए परेशान थे। सड़क के साथ वाक़े एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम ने कहा, मकीनों ने 200 गज का टुकड़ा तो मुरम्मत करा लिया, मगर पूरी सड़क नहीं बनवा सकते। समुद्री रोड से वारिसपुरा गोल चौक जाने वाली सड़क डगरावा रोड अरसा दराज से टूटी हुई थी। मुतादिद अफराद हादिसात में जख्मी हो चुके हैं, कई तो कीमती जानें भी जाये हो चुकी हैं। मकीनों के मसाइल उजागर करने पर सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं। 100 गज का ये टोटा हमने तो बना दिया हमारे मालिकों ने, लेकिन ये समुद्री रोड से लेकर वारिसपुरा गोल तक ये तो हम नहीं बना सकते। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो आएं और देखें और इस जो मसला है इस रोड का वो इसको क्लियर करें। अहले इलाका ने मजीद कहा कि समुद्री रोड से वारिसपुरा गोल चौक तक तवील सड़क की तामीर जिले इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों और हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में एडमिन ब्लॉक के 10 डिपार्टमेंट नई एमरजेंसी मुंतकिल। TH जुमरा में तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार, 68 लाख के फंड इस्तेमाल ना हो सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिटी 41 ने शहरियों और अमले को खतरे से निकाल लिया। 41 की निशानदेही पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में एडमिन ब्लॉक के 10 डिपार्टमेंट नई इमरजेंसी मुंतकिल कर दिए गए। इमारत के एक हिस्से की छत गुज़िश्ता रोज गिर गई थी। एडमिन ब्लॉक मुकम्मल सील, मुरम्मत का आगाज कर दिया गया। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी बाबू बन बैठे। तहसील अस्पताल झुमरा पर 68 लाख के फंड्स खर्च न किए गए। तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। महकमे बिल्डिंग फैसलाबाद का नोटिस, काम जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट भेजने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में इंसुलिन फराहमी का तरीका कार तब्दील। मतलूबा मरीज के लिए जाती तौर पर हाजिर होने की शर्त आए। मरीज पहले टेस्ट कराए, बाद असा इंसुलिन फराहम की जाएगी। नए SOPs जारी कर दिए गए। MS डॉक्टर सदफ नकवी का कहना था कि DHQ में तमाम मरीजों को इंसुलिन की फराहमी के लिए कोशां हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि काश्तकारों को किसान कार्ड के बाद ट्रैक्टर भी सब्सिडी पर मिलने की घड़ी करीब। फैसलाबाद डिवीजन में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानदाजी मुकम्मल। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कुरानदाजी के नताइज के मुताबिक फैसलाबाद के 352, जंग 363, टोबा 233 और चिन्योट में 140 खुशनसीब काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। कुरानदाजी में कामयाब काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में चिन्योट भर से 12,287 काश्तकारों ने अप्लाई किया था। 14 काश्तकारों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है। सबसे पहले CM पंजाब मोहतरमा मरीन नवाज शरीफ साहबा का जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि छोटे काश्तकारों को मोबिलाइज करने के लिए। जंग के काश्तकार मर्जी का ग्रीन ट्रैक्टर ले सकेंगे। ट्रैक्टर की फ्राहमी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। इब्तदाई लिस्टों में हॉर्स पावर की मंजूरी दी गई। 37 काश्तकारों पर मबनी वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई। खुशनसीब काश्तकारों को स्कीम में शामिल 60, 65, 75 और 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर मिलेंगे। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। डाउन पेमेंट की अदायगी पर काश्तकार मुतलका बैंक से ग्रीन ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स आमद। मॉडल चिल्ड्रन होम में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में KPK हुकूमत और
PTI को आड़े हाथों लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का फैसलाबाद सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स पहुंचने पर बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। सेनेटर तलाल चौधरी ने मॉडल चिल्ड्रन होम में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिदा रफीक, डेप्यूटी डायरेक्टर आमना आलम, इंचार्ज मॉडल चिल्ड्रन होम तनवीर तारिक से भी मुलाकात की। आइंदा बरसों में मजीद नए मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। सेनेटर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला पंजाब हर रोज एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान करती हैं। दूसरी जानिब KPK की हुकूमत सिवाय धरनों के कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन एक्सचेंज है। डॉलर कमजोर और रुपया तगड़ा हो रहा है। ऐसी वज़ीर आला है जो हर रोज किसी नए प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखती है, आगाज करती है, या किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए उसकी कारकर्दगी का जायजा लेती है। और दूसरी तरफ वो वजीर आला जो तब्दीली के नाम पर मुंतखब हुए और पिछले 8 महीने से कोई एक काम ऐसा जो किसी आम आदमी के लिए या KPK के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने आइंदा दिनों में महंगाई की शरह में कमी की नवीद भी सुनाई। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक कैमरा, मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। खुश्क मेवाजात खरीफ मौसम की सौगात। फैसलाबाद में खुश्क मेवे की कीमत सुनकर शहरी चकराने लगे। अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता और दीगर की कीमतें बढ़ गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सर्द मौसम शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई। अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, चिलगोजा की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। पिस्ता 2400 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए किलो हो गया। काजू 2500 रुपए की बजाय 2800 रुपए किलो मिलेगा। चिलगोजा 8000 की जगह 12000 रुपए फी किलो मिलने लगा। 2400 रुपए वाले बादाम की गिरी 2600 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं कि गरीब के लिए मौसम सरमा में खुश्क मेवे खाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ड्राई फ्रूट जो सा बहुत महंगा हो जा रहा है, सर्दी की वजह से गरीब आम खा नहीं सकती, गरीब आम ड्राई फ्रूट खाना चाहती है। दूसरी तरफ दुकानदार भी खुश्क मेवाजात की कीमत बढ़ने पर परेशान। कहते हैं सर्दी के मौसम में हमारा कारोबार चमकता है, मगर इस साल महंगाई बढ़ने की वजह से खुश्क मेवाजात महंगे हैं। कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए इक़दामात करे। जैसे सर्दी आती है हमारे दुकान में ग्राहकों का रश शुरू है। पिछले साल की नस्बत इस दफा महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। हमारे पास ग्राहक आते हैं, हमसे बहस करते, लेकिन क्या करें, पीछे से जैसे हमें महंगा आता है हम आगे सेल करते हैं। हमें वज़ीर आला से अपील है कि ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ दे, ताकि हमें गरीब आवाम को ड्राई फ्रूट सस्ता दे सके। खुश्क मेवाजात के कारोबार से जुड़े दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पहली बैनुल-अक़वामी डायबिटीज कॉन्फ्रेंस। नेचुरल और ऑर्गेनिक ऑयल ब्लेंडर बनाने वाला ब्रांड सुकून वेलनेस भी शरीक। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मारूफ नेचुरल ऑर्गेनिक ऑयल ब्लेंड्स बनाने वाले इदारे सुकून वेलनेस की फैसलाबाद सरीना होटल में मुनकिदा पहली सालाना इंटरनेशनल डायबिटीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सुकून वेलनेस की जानिब से सरीना होटल में खुसूसी स्टॉल लगाया गया, जिसमें शुगर के मरज में मुफीद नेचुरल ऑर्गेनिक ऑयल ब्लेंड से बनी प्रोडक्ट्स पेश की गयी। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान डॉक्टर मारूफ वेंस का कहना था कि सुकून वेलनेस की मसनूआत से मरीज बहुत मुतमईन है। सुकून की तरफ से जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली ऑन जॉइंट पेन के लिए है, हेयर ग्रोथ के लिए है, या मल्टीविटामिन्स हैं, ये इनकी जो है बहुत अच्छा जो है पेशेंट की तरफ से फीडबैक है। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले इरा में, आइंदा आने वाले दौर में सुकून जो है पाकिस्तान की मार्केट में एक अच्छा जो है मजीद बेहतर नाम क्रिएट करेगा। सदर लायलपुर डायबिटीज फाउंडेशन डॉक्टर अहमद शहजाद का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शुगर के मरज से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर और जदीद इलाज के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। डायबिटीज़ एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक मीन्स कि इस वक्त दुनिया में ये बहुत बड़ी वबा फैली हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन के करीब जो पेशेंट्स हैं वो डायग्नोज्ड हैं और आलमोस्ट इससे कुछ ज़्यादा अनडायग्नोज्ड पेशेंट्स हैं। हमें उन पेशेंट्स पे काम करना है और उनको प्रिवेंशन करनी है, प्रिवेंट करना है, ताकि वो डायबिटीज़ की और ना हो सके और उसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी ना जा सके। CEO सुकून वेलनेस शेख रोहेल का कहना था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी से मुताल्लिक मसाइल के लिए सुकून वेलनेस का प्रोडक्ट नरवॉन मरज के असरात को बहुत कम कर देता है।
जॉइंट टोन हमारा सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है जो जॉइंट पेन के लिए यूज़ किया जाता है। आपको 10 साल पुराना घुटनों और जोड़ों का दर्द है, आप यूज़ कीजिए, आपको विद इन डेज वो इफेक्ट करता है। उसके बाद आज के वाले से जो डायबिटीज़ के मामलात हैं उसके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी सबसे बड़ा इशू है, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट नर्वोन जो आपके वैसोडाइलेशन को आपके ब्लड के अंदर इंप्रूव करता है और डायबिटिक न्यूरोपैथी के उसके ऊपर इफेक्ट्स कम होते हैं। सुकून वेलनेस की जानिब से डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाई गई कुदरती अद्वियात अवामो खवास में यकसा मकबूलियत हासिल कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद।